Moving on. Today we have the privilege of delving into the pages of a captivating book that unravels the enigma surrounding the legendary figure Samrat Vikramaditya. The book promises to be a literary masterpiece, and it also has a key to unlocking the secrets and stories that have echoed through the corridors of time. As we gather here in the celebration of literature, we recognize the power of words to transcend eras, connecting us with the past and illuminating the path forward. Well, this session promises to be a riveting one, where we will explore history, culture, and the indomitable spirit of Samrat Vikramaditya, a ruler whose legacy has left an indelible mark on the fabric of our nation. For this, we have amongst us Dr. Bhagwati Lal Rajpurohit. Dr. Bhagwati Lal Rajpurohit. He's a retired professor. He's a retired professor and chairman of Hindi department in Sandipani Postgraduate College, Ujjain. He's done his master's in Sanskrit, Hindi, and has also done PhD in Sahityacharya, Sahitya Ratna. He's been honored with Dr. Radhakrishnan Samman twice over. We are honored to have you, sir. Joining him, we have R.C. Thakur ji. His works include discovery and research work of archaeological material related to archaeological importance, history, ancient currency collection, especially coins, seals, weapons, inscriptions related to Maharaja Vikramaditya. He has received the Unique Personality of Archaeology Award by Kaveri Research Institute in 2009. In conversation with them, we have Dr. Sri Ram Tiwari. Apart from working at various important posts in the Culture Department and Tribal Welfare Department, Dr. Tiwari is also the director of the Swaraj Sansthan, and we are honored to have these three eminent guests with us as they discuss Samrat Vikramaditya, the life and times of the legend. We'll have the mics, please. Hello. I would also request our volunteers to come backstage, please. If our volunteers are around here, can we request you to give us the mic? Thank you so much.
हेलो जी। आप ही चेक करेंगे? हेलो। मैं चेक कर लूँ आपका माइक? सर आपका माइक चेक कर लीजिए। हाँ जी, यहीं से बात आप चेक कर लीजिए। हेलो। जी नमस्कार। डॉक्टर राजपुरोहित जी और डॉक्टर आरसी ठाकुर साहब, आपका स्वागत है। और आज का जो दिन है वो ऐसे व्यक्ति के बारे में जानने का और उनकी समस्या को पहचानने की कोशिश करने का है, जिसके बारे में दुनिया में सामान्यतः यह भ्रांति है कि वह एक किंवदंती पुरुष हैं या वो हुए ही नहीं हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो राजपुरोहित जी आपसे सवाल है कि सम्राट विक्रमादित्य या कहें कि उज्जैनी के सार्वभौम सम्राट एक किंवदंती पुरुष हैं जैसा कि बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं, या एक वो इतिहास पुरुष हैं, उनका कोई अस्तित्व रहा भी है? तो जहां आपकी सुविधा हो, मतलब आप यहाँ बैठ के बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और आपको यदि वहाँ माइक पर वहाँ बोलना है तो जैसा आप ठीक समझें। जी, जैसे भी आपको ठीक लगे सर। एंड मीनवाइल एवरीवन इन द ऑडियंस, आई वुड रिक्वेस्ट यू to switch off your mobile phone if that is possible, or at least put it on silent mode. सरस्वती श्रुति महती महीयताम। समादरणीय तिवारी जी, विक्रमादित्य शोध पीठ के निदेशक श्री आर.सी. ठाकुर, अश्विनी शोध संस्थान के निदेशक, आप सभी विद्वज्जन और प्रिय छात्र छात्राओं, सम्राट विक्रमादित्य भारतीय अस्मिता का प्रतीक है। वो कथा कहानियों में महिलाओं से लगाकर के झोंपड़ियों तक व्याप्त है, लेकिन इतिहास उसके विषय में कितना अपनी बात रखता है और कैसे रखता है, ये विचारणीय है। विक्रमादित्य जितना कथा कहानियों में अपने समय से ही लगा करके आज तक व्याप्त है, उसका सबसे बड़ा ऐतिहासिक, सामाजिक, लौकिक प्रतीक है उसका संवत, विक्रम संवत, जो आज भी जनता में प्रचलित है। भारतीय जनता उसको जानती है। ये भी जो विक्रम संवत है, ये विक्रमादित्य ने आरंभ किया। ये वो विक्रमादित्य है जिसने शकों को पराजित किया था। शक एक विदेशी जाति थी और उसने भारत पर हमला किया था। तो उस समय छोटे छोटे बहुत सारे राजा थे, वो उसका सामना नहीं कर पाते थे। विक्रमादित्य ने अपनी शक्ति का संगठन किया और संगठन करके और उन विदेशी शकों को पराजित किया। पराजित करके उस उपलक्ष्य में
ये विक्रम संवत आरंभ किया। तो ये उस समय की भारतीय उपलब्धि, महान उपलब्धि का प्रतीक है संवत, जो आज तक विद्यमान है। ऐसे विक्रमादित्य के बारे में अनेक प्रकार की बातें इतिहास में कही जाती है, लेकिन और बहुत सारे विक्रमादित्य बाद में होते चले गए। वे सब विक्रमादित्य अपने आप को इस विक्रमादित्य की उपाधि लेकर के, नाम की उपाधि लेकर के अपने आप को गौरवान्वित करते रहे। वे समुद्रगुप्त के से लगा करके तो हेमू तक विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते रहे। ये जो विक्रमादित्य है, ये बहुमुखी व्यक्तित्व का धनी था। केवल विजेता ही नहीं था, बल्कि भारतीय संस्कृति के गौरव को एक प्रकार से नए संदर्भों में और नए तरीके से स्थापित करने का प्रयास किया। उसके दरबार के, उसकी सभा के जो नवरत्न हैं, उन नवरत्नों में से एक था कालिदास। उस कालिदास को कौन नहीं जानता, महाकवि कालिदास, सारा विश्व उसको मानता है, जानता है। दूसरा था वराहमिहिर, जो ज्योतिष के क्षेत्र में अद्वितीय था और उस समय जो संवत स्थापित किया था, उस संवत और काल की अवधारणा का तालमेल करते हुए तथा अन्य कई नए नए तथ्यों को लेकर के इस वराहमिहिर ने अनेक ग्रंथ लिखे। आज भी वो ज्योतिष की परंपरा में सारे ग्रंथ प्रमाण रूप में माने जाते हैं। तीसरा एक बहुत बड़ा नाम है अमरसिंह। अमरसिंह का अमरकोश, अमरकोश हो जगत पिता जो कहा जाता है। जगत मतलब संस्कृत। संस्कृत संसार में सबसे पहले बच्चों को अमरकोश पढ़ाया जाता है, रटाया जाता है, ताकि जो शब्द परंपरा है हमारी भारतीय, जो संस्कृत की शब्द धारा है, उसको विधिवत सब जान सके, पहचान सके। ऐसे जो विभिन्न हमारे धन्वंतरी, क्षपणक, घटकर्पर, कालिदास, शंकु, वेताल भट्ट। वेताल भट्ट का नाम कौन नहीं जानता है? वेताल पच्चीसी उसके नाम पर प्रसिद्ध है। तो वेताल पच्चीसी और सिंहासन बत्तीसी, ये दो ऐसे ग्रंथ हैं जो भारत और विदेशों में अत्यंत लोकप्रिय हैं। उनकी कहानियाँ कई भाषाओं में प्राचीन काल से ही अनुवादित होती रही और प्रचलित थी। मंगोली भाषा में राजी भूजी प्रसिद्ध है, प्रकाशित भी हो गई है। उसी तरह से सिंहासन बत्तीसी, सिंहासन द्वात्रिंशिका, उसे 32 कहानियों का संकलन है। राजा भोज और विक्रमादित्य को लेकर के वो कहानियाँ हैं। वो कहानियाँ ही नहीं हैं, एक प्रकार से उसका जो राजधर्म है विक्रमादित्य का, उन कहानियों के माध्यम से प्रकट हुआ है। बेताल पच्चीसी में केवल
बेताल की कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि वो 25 सामाजिक राजनीतिक ऐसे समस्याएं हैं जिन समस्याओं का समाधान उसमें किया गया है। तो ऐसी ये 2 किताबें तो प्रसिद्ध हैं, इनके अतिरिक्त भी कई किताबें और कई कहानियाँ विक्रमादित्य के बारे में प्राचीन काल से ही लिखी जाती रही। उनके समय से ही कथा सरित सागर, बृहद कथा मंजरी, जो बृहद कथा नामक उस समय ग्रंथ लिखा गया था, उसके आधार पर लिखी गई है संस्कृत में। उसमें विक्रमादित्य की सबसे पहले कहानियाँ लिखी गई हैं। हाल की गाहा सप्तशती में विक्रमादित्य की दान की प्रशंसा है और स्वयं विक्रमादित्य के लिखे हुए कुछ गाथाएं उसमें संकलित हैं। हाल सातवाहन राजा था, उस हाल का सिक्का ईसा पूर्व पहली शताब्दी का प्राप्त हो चुका है। इसका मतलब है कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में ही विक्रमादित्य अपने समय में ही लोक प्रसिद्ध हो चुका था और अपने समय से लोक प्रसिद्ध होते हुए आज तक प्रसिद्ध है। बीच में राजा भोज हुआ, बड़ा प्रसिद्ध नाम है मध्य प्रदेश का, मालवा का, धार का। उस राजा भोज की कई किताबें, 84 किताबें रही। उनमें से कई किताबें मिलती है, कुछ नहीं मिलती है, कुछ प्रकाशित है, कुछ अप्रकाशित है। उनमें से एक श्रृंगार प्रकाश नाम का ग्रंथ है, काव्यशास्त्र पोएटिक्स का। संस्कृत में सबसे बड़ा ग्रंथ वही है। उसमें करीब 8000 श्लोक उदाहरण के रूप में दिया गए हैं। उसमें उसके 8वें प्रकाश में एक प्रसंग में विक्रमादित्य कालिदास को पूछता है कि कुंतल देश का राजा, कुंचल प्रदेश का राजा की क्या स्थिति है, और कालिदास उसका उत्तर देता है। राजा भोज 11वीं शताब्दी का इतिहास में स्थापित व्यक्तित्व है। उसके सिक्के, शिलालेख, स्मारक कई प्राप्त होते हैं, कई ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं उसके। उस राजा भोज के जो जिस तरह से विक्रमादित्य जो है उपाधि के रूप में स्वीकार किया गया, उसी समय उसी तरह से राजा भोज की स्मृति भी बाद में बहुमान्य हुआ। तो उस ऐतिहासिक व्यक्ति ने, प्रामाणिक जिसको माना जाता है साहित्य में, उसने भी उस विक्रमादित्य को और कालिदास को समकालीन बताया और उसकी कहानी कही। श्रृंगार मंजरी कथा में, जो उसी राजा भोज की एक और किताब है, उसमें 13 कहानियाँ हैं। उन 13 कहानियों में से 4 कहानियों में विक्रमादित्य विद्यमान है। इसी श्रृंगार मंजरी कथा में देवदत्ता, मूलदेव आदि की विक्रमादित्य से संबंधित कथाएं हैं। मूलदेव कहता है उसमें कि आप जैसा कोई राजा नहीं,
और मेरा जैसा कोई चालाक नहीं। फिर भी हम चले गए। एक कहानी के अंदर का होता है। तो ये उसके माध्यम से कि विक्रमादित्य जैसा कोई राजा नहीं, ये राजा भोज ने कहा है। यही नहीं, 17वीं शताब्दी में एक जहांगीर हुआ है, बादशाह। जहांगीर ने जहांगीरनामा लिखा। जहांगीर जब उज्जैन आता है यात्रा करता हुआ, तो कहता है कि ये उज्जैन वो नगर है जहाँ का राजा कभी विक्रमादित्य होता था। और भारतीय राजाओं में, हिंदू राजाओं में, उसने हिंदू कहा है लेकिन मतलब होता है भारतीय राजाओं में, उससे बड़ा और कोई दूसरा नाम नहीं। उसका समय भी दिया उसने कहा करीब 1500 साल पहले, 1600 साल पहले वह हुआ। यही नहीं, यहाँ से यात्रा करता हुआ जब धार जाता है, वहाँ दक्षिण भारत से कोई सरदार उससे मिलने आता है। उसके वीरता से प्रसन्न होकर के उसे वह विक्रमाजीत उपाधि देता है। और ये लिखता है अपनी डायरी में कि ये सबसे बड़ी उपाधि है भारत में, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा पुराना राजा रहा है। तो इससे पूर्व राजा भोज के समय में अलबरूनी हुआ, जो आक्रांता मोहम्मद गजनी के साथ में आया था। उसने डायरी लिखी है, वो बड़ा विद्वान था वह। उसने कहा कि भारत में बड़ा प्रसिद्ध है विक्रम संवत, और करीब 1100 साल पहले वो आरंभ हुआ है। उसने विक्रमादित्य और व्याधि की एक कहानी भी उसमें दी है। तो ये कुछ ऐसे संदर्भ हैं जो यही नहीं बल्कि समुद्रगुप्त के समय में अरब में कवि सम्मेलन होते थे। उन कवि सम्मेलनों में एक कवि ऐसा था जिसे 3 बार लगातार प्रथम स्थान प्राप्त होता रहा, और इसलिए उसके कविताओं को स्वर्ण पत्रों के ऊपर उस समय लिखा गया। वो कविताएं इस्तांबुल से प्रकाशित हुई पहली बार, फिर दूसरी बार यरूशलेम से। तो उसमें विक्रमादित्य को की प्रशंसा करते हुए कहा है कि विक्रमादित्य धन्य है जिसने हमारे देश में जो अंधकार था, उस अंधकार, ज्ञान का अंधकार था, उसको प्रकाश प्रदान किया। राजपुरोहित जी, आपने तो साहित्य और वाङ्मय, पुराण इतिहास, इन सब के संदर्भ के साथ आपने विक्रमादित्य के बारे में जानकारी दी। और
मैं अपने आर सी ठाकुर साहब से निवेदन करूंगा कि जो पुरातात्विक प्रमाण जो हैं, क्योंकि साहित्य वांग्मय में तो बहुत सारी जानकारी मिलती है और बहुत से लोग पुराने इतिहास को सच्चाई मानते हैं, नहीं मानते हैं, कई तरह के उसमें मत विभिन्नता है। तो ठाकुर साहब को मैं तकलीफ दूंगा। ठाकुर साहब, आप वहाँ से कहना चाहेंगे, यहाँ आएंगे? आगे तो आर सी ठाकुर साहब, कृपया आप। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक माननीय तिवारी साहब, माननीय डॉक्टर राजपुरोहित साहब और उपस्थित देवियों, सज्जनों और छात्र छात्राएं, शोधार्थी और विद्वज्जनों, आज जो चर्चा हो रही है विक्रमादित्य के बारे में। विक्रमादित्य एक ऐसा नाम था, एक ऐसा राजा हुआ है जिसके बारे में जन जन तक आज भी किस्से, कहानियाँ और कथाओं के माध्यम से जानकारी मिलती है। परंतु दुख की बात यह है कि विदेशी साहित्यकारों ने, इतिहासकारों ने हमारे विक्रमादित्य के साहित्य को नकार दिया। विक्रमादित्य शोधपीठ 2010 से, पिछले 10 वर्षों से इस संबंध में काम कर रही है। हम विक्रमादित्य से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। विक्रमादित्य एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने इस भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम किया था और उस युद्ध को जीता था और विदेशी शकों को अपने देश से बाहर किया था। विदेशी शकों को जब यहाँ से बाहर किया तो आज से ईसा के 57 साल पहले एक संवत चलाई, विक्रम संवत। वो जीत के संबंध में संवत थी। उसके बाद विक्रमादित्य के समय ऐसे सिक्के निकाले गए जिसमें लिखा है मालवा ना जय, मालवा को विजित किया गया है। किंतु कई शोधार्थी और विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं। इस देश के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जब भी कतिपय विदेशी लेखक कुछ लिख देते हैं तो हमारे जितने भी विद्वान हैं उन विदेशी विद्वानों की लकीर पर चलना प्रारंभ कर देते हैं। एक बार लिख दिया जाता है कि राजा विक्रमादित्य नहीं था, उसका कोई प्रमाण नहीं है, तो जब हम अध्ययन के लिए आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारे रास्ते पर ताला लगा दिया जाता है, क्योंकि उस संबंध में हम विचार करना छोड़ देते हैं कि जब इस अस्तित्व वाला कोई व्यक्ति नहीं था तो हम उसके ऊपर क्यों अध्ययन करेंगे, उसके इतिहास को क्यों जानेंगे। परंतु एक बहुत सुखद बात है कि मध्य प्रदेश शासन, भारत सरकार और हमारी महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के प्रयासों से हमने विदेशी इतिहासकारों और साहित्यकारों को पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से उत्तर देना प्रारंभ कर दिया कि हमारा विक्रमादित्य था, विक्रमादित्य भारतवर्ष का राजा रहा है। अगर कोई विदेशी इस बात को नहीं मानता है तो उससे हम देश वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बंधुओं, विचारणीय बात है, वो विक्रम संवत जो हजारों वर्षों से हमारे यहाँ प्रचलित है, 2000 वर्ष से प्रचलित है, आज विदेशी शासक क्यों नहीं, विदेशी लेखक, विदेशी लोग क्यों नहीं मानना चाहते हैं। हमारा विक्रम संवत विदेशी संवत से 57 साल पुराना है। वो नहीं चाहते कि जिस भारत को हमने पिछड़ा देश कहा, जिस भारत को हमने अज्ञानी देश कहा, जिसके भारत में के बारे में हम लिखते हैं कि वहाँ के लोगों को इतिहास हम विदेशियों ने लिखना सिखाया, वो इस बात को पसंद नहीं करते थे। वो इस बात को किसी भी हालत में प्रमाणित नहीं होने देना चाहते कि उनके सन से भी 57 साल पहले भारत के एक प्रतापी राजा ने विक्रम संवत चलाया था और जो आज तक है। हम धन्यवाद देंगे उन राजा रजवाड़ों को, हम धन्यवाद देंगे उन व्यापारियों को जो आज भी अपने खाते में
जो भी उनके लेखों थे, उन लेखन में और राजा महाराजा अपने अभिलेखों में विक्रम संवत को लिखते आए। इस देश का दुर्भाग्य है कि देश की आजादी के बाद हमने उस विदेशी शक संवत को मान्यता दी है जो शकों ने चलाया था, जिनने हमारे देश पर अत्याचार किए थे, वो गुलामी का प्रतीक था। आज भी हम विक्रम संवत को राष्ट्रीय संवत का दर्जा नहीं दिला सके। अब उसके लिए इस नई पीढ़ी को, आपको और हमको संघर्ष करना पड़ेगा। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ को संघर्ष करना पड़ेगा। हमें 2000 साल पुराने ऐसे सिक्के प्राप्त हो चुके हैं जो लिपि के आधार पर राजा विक्रम लेख वाले हैं। हमारे पास पुरातात्विक पूरे प्रमाण और साक्ष्य मौजूद हैं कि आज से 2000 साल पहले भारत में विक्रमादित्य ने राज्य किया था। उसने सिक्के चलाए थे, उसने सिलें चलाई थी, उसने शिव उत्सव मनाया था। हमारे पास में टेराकोटा की सिलें मिली है। हमको कई प्रकार के सिक्के जिन पर शोध चल रहा है, जो बिल्कुल स्पष्ट हो चुके हैं, जो प्रकाशित हो चुके हैं, जो विक्रमादित्य ने निकाले थे। आज हमारे देश में विक्रमादित्य को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। हमारी संस्कृति में, हमारी रग रग में, हमारे साहित्य में और हमारे देश की चेतना में, हमारे यहाँ के न्याय में हर तरह से विक्रमादित्य पूरी तरह से रग रग में बसा हुआ है। उसे नकार दिया गया। हमें किसी भी हालत में विक्रमादित्य को पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। हम अयोध्या के टूर पर गए थे, अयोध्या पर में गए थे सर्वे करने के लिए। मैं आप सबको बताता हूँ, बड़ी आश्चर्य की बात है। कनक महल में एक प्रस्तर अभिलेख लगा है, अभी लगा है, आप पढ़िए। जब भी अयोध्या जाएं, आज भगवान राम की हम बात करते हैं, अरे हमारे विक्रमादित्य ने क्या करा था? भगवान राम के मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, कनक महल का जीर्णोद्धार किया था। और ये कपोल कल्पित बात नहीं है, ये वहां पत्थर के अभिलेख में लगा हुआ है, लिखा हुआ है वहां कि विक्रमादित्य ने आज से कलयुग के प्रारंभ में यहाँ पर कनक महल को स्वर्ण मंडित किया था, उसका जीर्णोद्धार किया था। और उसके बाद 440 साल बाद समुद्रगुप्त ने उसका वापस पुनर्निर्माण किया था। आप आश्चर्य करेंगे, विक्रमादित्य द्वारा राम और सीता की जो मूर्तियां हैं वो अयोध्या में स्थापित की गई थी। वो मूर्तियां आज भी है। और आप जब भी आप अयोध्या जाने का अवसर मिले तो भारत की आजादी के लिए सबसे पहला संघर्ष करने वाला हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महाराजा विक्रमादित्य, भारत में न्याय की गंगा बहाने वाला महाराजा विक्रमादित्य, इस देश के जन जन तक बसा हुआ हमारा राजा विक्रमादित्य, वो अयोध्या में जाकर भगवान राम का मंदिर तो बनाता है, परंतु राम और सीता की मूर्ति भी विक्रमादित्य द्वारा वहां पर स्थापित है, वहां अभिलेख में लिखा हुआ है। और वो मूर्ति जब समय समय पर वहां पर विध्वंस हुआ, वाताताइयों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, उसके बाद वापस पुनर्निर्माण हुआ। जब ओडिशा के महाराजा ने वापस मंदिर का निर्माण किया, उस अभिलेख में लिखा है कि ये जो यहाँ स्थापित मूर्ति है, ये मूर्ति विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित की गई थी, उसे हमने पुनः स्थापित की है। अब कौन सा संशय बच जाता है विक्रमादित्य के बारे में? समय की बाध्यता है, फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। फिर भी मैं कहता हूं कि हमारे देश की आज़ादी जब तक अधूरी आज़ादी है, जब तक हमारे विक्रम संवत को हम राष्ट्रीय संवत के बारे में मान्यता नहीं दिला देते, जब तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के कानों तक ये बात नहीं पहुंचाते और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी मोहन जी यादव इस संबंध में वर्षों से बहुत प्रयास करते आ रहे हैं, पूरी तरह से प्रयासरत हैं। और निश्चित ही मानिए कि हमारे देश का जो ये लौटा हुआ वैभव था, हमारे साहित्य को लूटा गया था, हमारे इतिहास को छीना गया था, विकृत किया गया था, दूषित किया गया था, ये पुनः वापस प्रवाहित होगा, जन जन तक प्रवाहित होगा और हमारे देश की के हर जगह पर प्रवाहित होगा। धन्यवाद। जय हिंद। समय के कारण मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। सर ने कहा था 10 मिनट से ज़्यादा मत बोलना, फिर बात करूँगा। फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ एक बार आप विक्रमादित्य के संबंध में सिर्फ एक शब्द बात करिए कि हम संकल्प रहते हैं कि हमारे देश में हमारा संवत विक्रम संवत ही इस देश का राष्ट्रीय संवत बनेगा। किसी भी हालत में हम विदेशी संवत को स्वीकार नहीं करेंगे, इसे हम नकारते हैं। आप मेरी बात से सहमत हो तो मेरे साथ भारत माता की जय बोलिए। भारत माता की, भारत माता की। और दोस्तों 2 मिनट और लेना चाहता हूं मैं कि हम और आप जो प्रयास कर रहे हैं, इन प्रयासों के बारे में मैं सिर्फ 2 मिनट आपका और लेना चाहता हूं
कि एक बार एक पेड़ के ऊपर आग लगी। जब आग लगी तो वहां जितने पक्षी थे वो सब उड़ गए, इधर उधर भाग गए, बैठ गए। एक छोटी सी चिड़िया थी, उसने उस जलते हुए वृक्ष के ऊपर पास के तालाब से एक एक बूंद पानी लाके डालना शुरू किया। जो बाहर जो इस तरह के कहीं गिद्ध कौवे वो बोल रहे थे, अरे मूर्ख चिड़िया, तू एक बूंद पानी से ये आग बुझा देगी। चिड़िया अपना प्रयास करती रही, पेड़ जल गया। अब अंत में सारे पक्षियों ने मजाक उड़ाया, अरे देखो ये छोटी सी चिड़िया मूर्ख, अगर इसके लपट में आ जाती तो जल के मर जाती, बार बार पानी डाल रही थी, क्या पेड़ बुझा दिया। तब चिड़िया कहती है कि जिस देश में तुम आश्रय लेते हो, जिस पेड़ पर तुमने आश्रय लिया है, अरे नकारो, जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें आग बुझाने वाली में मुझ चिड़िया का नाम लिखा जाएगा, तुम नालायकों का नाम तो आग लगाने वालों में लिखा जाएगा। आप चाहे छोटी नन्ही सी चिड़िया हैं, इस देश के लिए आपको ऐसे ही प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठाकुर साहब का धन्यवाद और राजपुरोहित जी आपका भी धन्यवाद। सिर्फ छोटी छोटी सूचना में, क्योंकि विक्रमादित्य शोधपीठ का संयोग से मैं निदेशक हूँ और 2009-10 में इस संस्थान की स्थापना हुई उज्जैन में। तो इस जो 10-12 साल की जो यात्रा है, इसमें विक्रमादित्य को लेकर काफ़ी काम हम लोगों ने किया है। और एक अभी सुखद संयोग है कि मध्य प्रदेश शासन ने, जो ठाकुर साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं विक्रम संवत को लेकर, तो मध्य प्रदेश शासन ने इस बार का जो शासकीय कैलेंडर है उसमें विक्रम संवत को भी अंगीकार किया है। और ये पहल, जैसे वो चिड़िया की जो बात आप कह रहे हैं, चिड़िया का उदाहरण जो दे रहे हैं, तो हमारी कोशिश है और इसको राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किया गया है और विश्वास है कि जल्द ही उसके सुखद परिणाम सामने आएंगे। दूसरा, जो अयोध्या का आपने जिक्र किया राम मंदिर का, तो जिस मंदिर को बाबर ने और उनके सेनापति मीर बाकी ने ध्वस्त किया था, वो संयोग से विक्रमादित्य ने ही आज से 2100 साल पहले बनाया था। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के बारे में जब मान्यता दी है तो विक्रमादित्य के इस सारे साक्ष्यों के आधार पर ही राम मंदिर के निर्माण का उनने अनुमति दी और आदेश दिया। तो अयोध्या में लगभग 240 नए मंदिरों का और 60 पुराने मंदिरों का विक्रमादित्य ने निर्माण कराया था। इसके अलावा बनारस, अहमदाबाद, द्वारका, दक्षिण में कई जगह उन्होंने काम किए। तो यह सूचना है। और विक्रमादित्य शोधपीठ लगभग 60-70 किताबें विक्रमादित्य, उनके युग और भारत विद्या पर प्रकाशित कर चुका है और कर रहे हैं। अभी शीघ्र ही भारत की जो ऋषि वैज्ञानिक परंपरा है उस पर एक काफ़ी टेबल बुक हम लोगों ने तैयार की है, जिसमें 2 वॉल्यूम में वो किताब है। पहला वॉल्यूम में 111 ऋषि हैं, जिसमें अत्रि भी हैं, आत्रेय भी हैं, अग्नि भी हैं, इंद्र भी हैं। इनका जो साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन जो सोसाइटी में रहा है, भारद्वाज हैं, अगस्त हैं, उन सब के बारे में वो सूचनाएं होंगी और किताब बहुत सुंदर छपी है। यदि मुझे थोड़ा भी अंदाज होता, राघव चंद्रा साहब यदि मुझे थोड़ा भी आदेश देते तो शायद मैं आज उसको यहाँ रिलीज़ करने की तैयारी में था, पर ठीक है। और तो आप सबका धन्यवाद कि आपने विक्रमादित्य के बारे में ध्यान से सुना। धन्यवाद। धन्यवाद सर। एक बार फिर हमें राजा विक्रमादित्य के जीवन से वाकिफ़ कराने के लिए। अब मैं डॉक्टर रीमा आहूजा जी से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे गेस्ट को सम्मानित करें। डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित, आर.सी. ठाकुर जी एंड डॉक्टर श्रीराम तिवारी। BLF 2024 द्वारा दिए जा रहे हैं मोमेंटो। एक पेंटिंग है सीनियर मोस्ट गॉन्ड आर्टिस्ट राम सिंह उर्वेती द्वारा बनाई गई।
Thank you so much, Dr. Bhagwati Lal Rajpurohit, R.C. Thakur ji, and Dr. Shriram Tiwari ji for this powerful and enriching session on Raja Vikramaditya. There were so many things that we in the audience were absolutely unaware of, and all thanks to you, we go back a little wiser. Thank you so much.